ٹو آل آف یو، میں ہوں فخر یوسف زئی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیبیٹ ود فخر۔ آج کی ڈیبیٹ میں بات کریں گے پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن کیا چل رہی ہے، پاکستان کی سیکیورٹی سچویشن کیا چل رہی ہے، اور پاکستان کی اکنامک فرنٹ پہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ آئی ایم ایف لون کی حامی بھر لی ہے، تقریباً $3 ارب۔ بہت عرصے تک ہم کوشش کرتے رہے، 9th ریویو اور 10th ریویو تو نہیں ہوا، لیکن انہوں نے ایک اسپیشل اسسٹنٹ فنڈ جو ان کے پاس ہوتا ہے وہ کیا ہے۔ اس پہ ہم نے کافی خوشیاں بھی منائی ہیں، اور ہم مطلب شاید لودیاں بھی پا رہے ہیں کہ یار ایک بہت بڑا کام ہم نے کر لیا۔ واقعی ایسا ہے کہ ہم 25ویں 26ویں یا 27ویں دفعہ ہم یہ کر رہے ہیں، اور ہم اسی پہ خوشیاں مناتے ہوئے ہم نے 75 سال گزار لیے۔ آگے جا کے ہمارے ارد گرد کے جو ممالک ہے، جس میں سب سے کمزور ملک، شاید کمزور تو نہیں کہنا چاہیے لیکن چلیں ایک سٹیبل حکومت نہیں ہے، وہ ہے افغانستان۔ وہاں پر طالبان کی 2 سال ہونے کو ہے، اگلے مہینے ان کو پورے 2 سال ہو جائیں گے کہ انہوں نے ٹیک اوور کیا۔ نہ وہ دنیا کے امریکہ سے مانگ رہے ہیں، نہ وہ آئی ایم ایف سے مانگ رہے ہیں، نہ وہ کسی اور سے مانگ رہے ہیں، نہ کوئی ان کو دے رہا ہے، لیکن ان کا ملک ہم سے بہتر چل رہا ہے۔ اس وقت انفلیشن وہاں پہ کم ہے، باقی سچویشن بھی سننے میں آ رہے ہیں، انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں ان کی رپورٹس آ رہی ہے کہ کچھ بہتری آئی ہے وومن فیمیل ایجوکیشن، یا اس کے سائٹ پہ کر کے اس کے اگر سائٹ پہ کریں تو باقی چیزیں کچھ تھوڑی سی بہتری نظر آئی ہے۔ ہم کیوں نہیں کر سکے یا کیوں نہیں کرنا چاہتے، اس پہ آج بات کریں گے، اور بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر اینالسٹ ہیں، جرنلسٹ ہیں، منیر احمد صاحب جوائن کر رہے ہیں۔ منیر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ مائی شو۔ بہت شکریہ فخر۔ منیر صاحب، ایک تو یہ بتائیے گا کہ یقیناً آپ جرنلزم کے فیلڈ میں آپ نے بڑی ساری حکومتیں دیکھی ہیں، اکنامک کرائسس بھی دیکھی ہوں گی، پولیٹیکل کرائسس بھی دیکھی ہوں گی، سب کچھ دیکھا ہوگا آپ نے۔ مجھے یہ بتائیں کہ ہم کافی منت سماجت کے بعد ہمیں جو بھی لون چون کوئی بھی دے دیتا ہے، یو اے ای دے دے، چائنا دے دے، سعودی عربیہ دے دے، آئی ایم ایف دے دے، یا دنیا کی کوئی اور لوگ دے دیں، ہم بڑے خوش ہو جاتے کہ یار ہمارا بس ابھی سارا کام ہو گیا۔ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ لون لے کے بندے کو زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ یار لون لیا، مزید برڈن بڑھ گیا میرے اوپر؟ ہم کہتے نہیں ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، الحمدللہ بہت اچھا ہو گیا کہ ہمیں آئی ایم ایف نے $3 ارب کی اپروول دے دی، جو توڑا توڑا کر کے وہ ہمیں پیسے دیں گے۔ فخر، یہ ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی صورتحال میں اور ایک وشوس سائیکل میں ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ کافی بے شرمی کی بات ہے کہ ہم لوگ قرض ملنے کے اوپر بڑی لوٹیاں ڈالتے ہیں، اور آپ یقین مانیں کہ اس قرض کے بغیر ہم لوگ چل بھی نہیں پاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم اپنے اخراجات کم نہیں کرتے ہیں، ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھانے کی طرف اور اپنی پروڈکٹیوٹی کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری ان ایفیشنسیز ہیں ان کی وجہ سے ہمیں قرض کے لیے بل بلانا پڑتا ہے، لوگوں کے پاؤں پڑنا پڑتا ہے، وہ بل آخر ہمیں مل جاتا ہے تو پھر ہم اس پہ کافی لڈیاں ڈالتے ہیں۔ یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ ساری صورتحال۔ لیکن اگر ایک لحاظ سے فخر ہم اس کو دیکھیں کہ قرض کا ملنا، آپ کو معلوم ہے کہ جتنے بھی ہمارے دوست احباب ہیں اور یہ سارے انہوں نے قدغن لگائی ہوئی تھی ہمارے اوپر کہ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام بحال ہوگا تو ہم آپ کے ساتھ اپنے جو معاشی معاملات ہیں وہ لے کر چلیں گے، اور آپ کے ہاں انویسٹمنٹ کریں گے یا دوسری چیزیں ساری، اور اس کا پہلے سے آئی ایم ایف نے ساری گارنٹیز لی ہیں۔ اور جب پی ڈی ایم کی حکومت پچھلے سال آئی تھی تو تب صورتحال انتہائی مخدوش تھی، اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے تھے۔ ایسی صورتحال کے اندر بہت زیادہ تھا، اور پی ٹی آئی کی جو لیڈران ہیں، جو ان کی لیڈرشپ ہے، وہ بہت شد و مد کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں، اس کا اعلان کیوں نہیں کیا جاتا۔ ایک طرف تو یہ ایک بے حسی تھی سیاسی پارٹی کی کہ وہ پاکستان کو ڈیفالٹ کرانے کے اوپر مصر تھی، اور اس کے اوپر شاید وہ خوش بھی ہوتی۔ دوسری، جیسے جیسے ہماری جو اکنامک کنڈیشن زیادہ خراب ہوئیں تو ہمارے جو اندر کے دشمن ہیں ملک کے، انہوں نے زیادہ اس کے اوپر خوشیاں منائیں، اور وہ شاید اس سے کافی زیادہ تھیں جو آج یہ ملنے پر، قرض ملنے کے اوپر۔ یہ شاید قرض ملنا اس لیے بھی ہمارے لیے ضروری تھا کہ یہ قرض کے پیسے لے کے ہم نے وہ جو پچھلا قرض ہے وہ اتارنا ہے، اور یہ بہت وقت سے چل رہا ہے، اور یہ ایک بڑی بے شرمی کی کیفیت ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، اور ہمیں شاید اپنے، اور دوسری طرف دیکھیں کہ چیئرمین سینٹ کی مراعات کا جو بل
पास किया गया है वो किस सतह का है और वो क्या सूरत हाल है, यानी जो प्रेजेंट किया गया, और अब ये वापस कहा जा कर रहा है रहे कि शायद वो वापस उसको लिया जाएगा और उसके ऊपर जोर डाला जा रहा है कि ट्राई उन्होंने कर ली थी, लेकिन बहुत ज्यादा जलील होने के बाद लोगों ने, मीडिया ने, आप हाँ जैसे जर्नलिस्ट, हम जैसे बहुत सारे लोगों ने जब शोर शराबा किया तो उनको वापस लेना पड़ा। हाँ, नहीं वापस ले लिया है उन्होंने अभी, क्योंकि अभी कोई स्टेटमेंट आया है कि वापस क्या ले लिया स्टेटमेंट जो सादिक थी संगिरानी कि साहब का। अच्छा उनका आ गया है कि हम इसको वापस ले रहे हैं, जी तो जी ये अच्छी जी बात है। अब आप दूसरी तरफ देखें कि अगर जो हमारे दूसरे स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे जुडिशरी को जब एक जज रिटायर हो बिल्कुल। रहा है तो हम उसको यस, कितनी मराद दे रहे हैं, एक बिल्कुल ब्रिगेडियर और कर्नल या उससे ऊपर जितने भी हमारे फौजी रिटायर हो रहे बिल्कुल हैं, हम उनको कितनी मराद दे रहे हैं और उनकी जिंदगी में उनको कितनी मराद दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर तीसरा जो सबसे बड़ा तबका जो मराद याफ्ता है वो ये सीएसपी ऑफिसर्स हैं, यस, जो सीएसएस करके आते हैं और ग्रेड बिल्कुल 17 से उनकी जिस तरह से एक मराद का सिलसिला शुरू होता है और फिर उनकी एफिशिएंसीज के ऊपर तो बहुत सारे सवालिया निशानात बहुत पहले से हैं। और ब्यूरोक्रेसी हमारी जो है वो बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट हुई है पिछले बहुत सारे वक्त के अंदर। अगर ब्यूरोक्रेसी हमारी चल रही होती तो शायद हमारे जो सियासी निज़ाम है, जो मुआशी निज़ाम है वो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन वो बहुत सारी बरात लेने के बावजूद और अभी भी इतनी वाइट कॉलर क्राइम्स पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं कि हम सियासतदानों को तो मलूम ठहराते हैं, लेकिन हम बाकी जो शोबे हैं उनके ऊपर हम बिल्कुल भी कोई उंगली नहीं उठा रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल और जो हमारी ब्यूरोक्रेसी जिस तरह के एसआरओज, स्पेशल एसआरओज इशू होते हैं और उससे कुछ लोगों को उसका फायदा पहुंचता है, तो वो सिर्फ उनको फायदा नहीं पहुंच रहा होता मुतलका शोबे को, जितनी सब्सिडीज हैं, तो क्या ये सारी सब्सिडीज जो है वो मुतलका सेक्टर्स के अंदर जाती हैं? क्या उसका जो हिस्सा है वो हमारे जो अकाबरीन है ये ब्यूरोक्रेसी हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्या इनको नहीं आता है? क्या वो बहुत सारे पैसे नहीं लेते हैं मुख्तलिफ तरह के एसआरओज इशू करने के लिए? तो ये बहुत सारी सूरत है। फिर अभी इसहाक डार साहब के बारे में जिस तरह से आया है कि 74 करोड़ रुपए उन्होंने जो पिछले 4 साल में उनके ड्यू थे और काम तो उन्होंने किया कोई नहीं, अब अभी आके हल्फ लिया और 4 साल के उन्होंने हाँ पैसे ले लिए। तो हाँ मतलब इस तरह की जो सूरत हाल है ना फखर, ये हमें ज्यादा डुबोती है और हमें इसको ज्यादा देखने की जरूरत है। बाकी आम तबका जो है अभी कितने बिलियंस का और टैक्सेस जो हैं वो अभी आने वाले हैं, सिर्फ बजट बिजली में की मद कितने में पेश 100 कर अरब दिए रुपए गए का हैं। लग गया आज सर, सिर्फ अच्छा, बिजली की लग गया। मद में आज लगा 100 अब अरब रुपए। अब ये देखें कि हमारे जो लाइन लॉसेस हैं और जो चोरी है वो मिला के 42-45% हो जाती है। यस, जिस मुल्क की आधी बिजली चोरी हो जाती हो या नुकसानात में यानी लाइन लॉसेस में चली जाती हो, यार बिल्कुल बिल्कुल इनके बारे में कोई चीजें नहीं हो सकती क्या? जितना पैसा हम डैम्स बनाने में और चीजों में करने में लगा रहे हैं, तो क्या हमारे बैंक जो है वो ग्रीन फाइनेंस में हर घर को सोलर सिस्टम नहीं दे सकते? हर घर एफिशिएंट हो जाए, सफिशिएंट हो जाए बिजली के हवाले से, वो अपनी पैदा करे और वो ग्रिड स्टेशन के अंदर भी डाले। रिवर्स बिल्कुल मीटरिंग सिस्टम बिल्कुल तो अब सबके सामने है। तो क्यों हम ऐसे चीजें, अब एक तरफ पंजाब के अंदर सोलर सिस्टम के हवाले से बात हो रही थी और पता चला कि वो शहबाज शरीफ के साहबजादे जो हैं वो सबसे बड़े इम्पोर्टर रहे सोलर पैनल्स के, तो बिल्कुल शायद सबसे ज्यादा फायदा उसको होगा। तो अब ऐसे जब स्कैम सामने आते हैं, ऐसी जब अफवाहें सामने आती हैं, तो मेरे और आप जैसे लोग जो हैं उनके लिए ये ज्यादा परेशानी का बायस होता है। बेशक और हमारा जो यकीन पहले ही मुतजलजल है सियासतदानों के ऊपर, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर और बाकी जो रियासती इदारे हैं उनको चलाने वालों के ऊपर, वो मजीद बिल्कुल अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाता बिल्कुल है। बिल्कुल और तो ये सारी चीजें हैं, अगर इन फैक्टर्स को अगर हम थोड़ा ठीक करना शुरू करें, मेरा ख्याल है ये कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। 3 से 4 महीने के दौरान ये सारा सिस्टम ठीक हो सकता है। बिल्कुल आपको कुछ मिसालें कायम करनी होंगी सजा के और जजा के हवाले से। हाँ हाँ बिल्कुल सर। अच्छा सर, एक एक चीज आपने बिजली चोरी की बात की, मुझे तो
मुझे तो मिसमैनेजमेंट हर चीज़ के अंदर हाँ, नज़र आ रही है। ठीक है, हमारे मसाइल भी हैं, मैं ये नहीं कहता कि हमारे ऊपर कर्ज़ा नहीं है, दुनिया का 130-140 अरब डॉलर का हमारे ऊपर कर्ज़ा भी है और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जितना जिस जो मुझे सबसे ज़्यादा कोई चीज़ नज़र आ रही है, मेबी आप मुझसे एग्री करें या डिसएग्री करें, वो मिसमैनेजमेट है सर। इलेक्ट्रिसिटी के हवाले मिसमैनेजमेंट। से सर अभी कुछ दिन पहले मैं अपने इलाके में था मर्दान, हमारा जो फीडर है, उसके अंदर एक लड़का है जो पहले क्लास 4 था, वो असिस्टेंट लाइनमैन बना हुआ है। आप हुँ, बिलीव करें या ना करें, लेकिन उसने अपने घर और अपनी मार्केटें 2 बना ली हैं। अब मुझे ये कोई बता दे कि उस लड़के की तनख्वाह ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपए होगी। वो घरों से पैसे लेता है, 1000 2000 रुपए लेता है और उनको कहते हैं मीटर नहीं लगवाना। जॉब करता है, परमानेंट एम्प्लॉयी है वापडा का। हुँ, हुँ। टेस्को का वो एम्प्लॉयी है और वो नहीं कुछ कर रहा। ये एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ये कोई सिर्फ़ वो एक नहीं है। शायद ये हज़ारों होंगे या हो सकता है ये लाखों होंगे। ये कराची सिटी में सर आम है, बिजली चोरी वहाँ हुँ, पे कोई मतलब बुरा नहीं कहता इसको। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध में, पंजाब में, कहीं पे भी आप चले जाएँ, आपको ये चीज़ मिलेगी। इसका मतलब है सर हुकूमत इसको करना ही नहीं चाहती। अगर वो विलिंग होती तो इसके ऊपर काम करती। और वो भी मतलब आप ऐसे नहीं वॉर फुटिंग के उस पे करती। बिल्कुल सही बात है। देखें जब वॉर होती है ना जो आपकी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें आप कितनी एहतियाती तदाबीर कर रहे बिल्कुल, होते हैं, इमरजेंसी बिल्कुल, नाफ़िज़ होती है। आप मुआशी इमरजेंसी क्यों नाफ़िज़ नहीं करते? इकोनॉमिक क्राइसिस जहाँ तक पहुँच चुका हुआ है, आप आईसीयू के आखिरी लम्हात में हैं बिल्कुल। और आपकी साँस उखड़ चुकी है और किसी वक़्त भी फ्लैट हो सकती है। यस, अभी अगर आपके दोस्त ममालिक अगर आपका हाथ ना पकड़ते और आईएमएफ को यकीन ना हो जाता कि नहीं यार ये तो अब हमारे चुंगल से निकल जाएगा और अब तो इसके लोग जो हैं इसके साथ काफ़ी ये सँभल गए हैं, तो शायद वो अभी तक आपको कर्ज़ा देने की पोज़ीशन में ना आते। आपके साथ ये $3 $3 बिलियन डॉलर्स की जो आपके साथ वो कर रहे हैं, शायद वो ना करते। यस, लेकिन क्या इनएफिशिएंसीज़ को ख़त्म करने के लिए नियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, और हमारी ब्यूरोक्रेसी से लेके ऊपर तक जितने भी लोग हैं, जो भी करता-धरता है, वो जिस शोबे में है, सारे शदीद बदनीयती का शिकार हैं। तो अब ऐसी सूरत-ए-हाल के अंदर आप देखें, अब बिजली चोरी हो रही है, लाइन लॉसेस हो रहे हैं, आपके एक कोरियन कंपनी ने बहुत वक़्त में 2 सूबों के अंदर आपका जो सारा जो मीटरिंग सिस्टम है, उसको रिवैम्प करने का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। आपने उसको नहीं चलने दिया। आप वो आपके फ़ायदे के लिए आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और बिलियंस की इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। आपके 2 सूबे के अंदर आपके इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जो मीटरिंग सिस्टम है वो बहुत एफिशिएंट हो जाना था बिल्कुल, बिल्कुल, और आपका 50 टू 60% बिजली जो है वो बच जानी थी। यूँ समझ लें कि जब एफिशिएंसी बढ़नी थी तो जो इस वक़्त आप 100 यूनिट लगा रहे हैं, तो वो 40-50 यूनिट के अंदर सारे मामलात आपके वो आपको हर जगह के ऊपर बिजली मिल जानी थी। लेकिन आपने उस प्रोजेक्ट को नहीं चलने दिया क्योंकि मेरी इल्म में है कि आप उनके ऊपर किकबैक्स माँग रहे थे। अब इसी तरह आपके जो रिकॉर्डिक वाला मामला है, वो कितने वक़्त तक जो फँसा रहा इंटरनेशनल कोर्ट में ज़लील होने के बाद, आपने सारे मामला दोबारा से ठीक किए और दोबारा से उस कंपनी को अपने यहाँ काम करने की इजाज़त दी। तो ये जब तक किकबैक माफिया जो है, जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी है, जो हमारे हुक्मरानों के अंदर भी है, जो इलाके के जागीरदारों के अंदर भी है, जब तक ये सारी चीज़ें खत्म नहीं होंगी और मेरा ख़्याल है कि देखें अब हम जब दूसरे मुल्कों की मिसाल देते हैं ना, तो लोग मुझे कहते हैं यार आप वहाँ की मिसाल दे रहे हैं, पाकिस्तान की आप मिसाल दिया करें। जी, पाकिस्तान की मिसाल बनती नहीं है, अगर ईरान अपनी एफिशिएंसी को बेहतर कर सकता है, अफ़गानिस्तान अपनी एफिशिएंसी बेहतर कर सकता है और जो मौजूदा रिसोर्सेज़ हैं उनके अंदर चल सकता है और पाकिस्तान से अपनी करेंसी को 2 सालों में बहुत बेहतर कर सकता है। बिल्कुल। और अगर बांग्लादेश जो है उसकी एक्सपोर्ट्स आपसे कई गुना बढ़ बिल्कुल, सकती हैं और अगर उनका 1 टका जो है वो मैं कहा ₹2.5-3 दे के आप 1 बिल्कुल सर, टका लेते बिल्कुल, हैं उनसे, बिल्कुल। तो अब आपको 3.5 शर्म इंडिया से का है और तकरीबन ₹3 का टक्का है सर। टका है। तो आप पहले जो टके टोकरी हम कहते थे, तो वो बेसिकली वहीं से शुरू हुआ था ना? बिल्कुल ठीक। तो जब अब क्या है, आपकी टोकरी जो है वो कितनी महँगी आपको लेनी पड़ रही है। तो अब यस, आपको ये सारी सूरत-ए-हाल को देखना पड़ेगा और शायद आपको कुछ चीज़ों में चीन से सबक सीखना पड़ेगा, उनका सिस्टम कितना
وہ ایفیشینٹ ہے، اور میرا خیال ہے کہ آپ کو ڈیموکریسی سے زیادہ آپ کو ڈنڈے کی ضرورت ہے. جو بالکل، نظام ڈنڈے کی کے اوپر چلایا جائے گا، شاید وہی آپ کی ایفیشنسی کو بہتر کرے گا. بالکل اب صحیح، اب یہ اگر ہم مختلف طرح کے لوگوں کے مفادات کو لے کے چلتے رہیں گے، اور ہم ڈیموکریسی کا اور ووٹ بینک کے معاملات کو لے کے چلتے رہیں گے، تو شاید ہم اپنے سسٹم کو بہت وقت تک بہتر نہیں کر سکیں گے. اب بالکل، ہر شخص کو، جو سرکار کا نوکر ہے، جو سرکاری خزانے سے تنخواہ لیتا ہے، اس کو تھوڑا سوچنا پڑے گا کہ کیا وہ اپنے گھر کے اندر جو پیسے لے کے جا رہا ہے وہ ہارڈ کور ارننگ ہے، یا وہ فضول کا پیسہ وہ لے کے جا رہا ہے. جی، اب میں دوسرا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا اس بالکل کے ٹھیک، لیے، بالکل لیکن اب کم از کم کچھ خدا خوفی ہر شخص کو کرنی پڑے گی. ٹھیک. اچھا سر ایک چیز تھوڑا-سا پولیٹکس کی طرف آتے ہیں اور وہ ہے جی میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے خبریں بڑی گرم ہے کہ جی میاں صاحب آ رہے ہیں اور چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بنیں گے. وہ ایک تو قانون بھی پاس ہو گیا جو الیکشن کمیشن کا تھا کہ وہ ان کی سزا یا کسی کی بھی سزا وہ 5 ایئر سے زیادہ نہیں ہوگی. کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں، آ سکتے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے بلاول کی ہوا چلی ہوئی تھی کہ جی بلاول پرائم منسٹر ہوں گے نیکسٹ پاکستان کے. اور کیا جو کچھ ہم نے 90s میں دیکھا، جو کچھ ہم نے 2000 کے بعد دیکھا، وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا نواز شریف صاحب کی حکومت ہو، وہی سلسلہ دوبارہ ہو سکتا ہے یا اس دفعہ بات ہوگی بڑی کلیئر کٹ. اسٹیبلشمنٹ کو کہا جائے گا کہ بس کر دیں سر، آپ اپنا کام کر لیں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں. آپ کا کام ہے بارڈر کو پروٹیکٹ کرنا، آپ وہ کریں. ہمارا کام ہے انٹرنل میٹرز کو یا فورن پالیسی کو بنانا، ہمیں یہ کرنے دیں، ہمیں اکانومی کو سیٹل ڈاؤن کرنے دیں، باقی چیز یہ ہوگا. یا پھر یہی مطلب جو اگڑم دگڑم لگی ہوتی ہے یہ چلتی رہے گی؟ دیکھیں، سسٹم اتنا خراب ہو چکا ہوا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ جو بھی حکومت آئے گی، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کی حکومت آئے، کوئی مخلوط حکومت آئے، جی، کہ وہ بہت زیادہ آزاد ہوگی اپنی فورن پالیسی کے حوالے سے. اور جی، شاید آپ کی فورن پالیسی اتنی زیادہ انڈیپینڈنٹ ہوتی بھی نہیں، اور وہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو جو آپ کے سیکیورٹی کے ادارے ہیں، آپ کو ان سے گائیڈ لائن لینا پڑتی ہے اور اس طرح سے آپ کو چلنا پڑتا ہے. جی، میری خواہش تو یہی ہے ہر پاکستانی کی طرح کہ ہماری فورن پالیسی انڈیپینڈنٹ ہو، آزادانہ ہو، اور بالکل، وہ انفلوئنس نہ ہو. ابھی جی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے ہماری پالیسی جو ہے، ہم نے کوشش کی، اب نواز شریف صاحب کے پچھلے دور کی طرف اگر چلے جائیں تو ہم نے کچھ ایسے سٹیپس لیے جو فائر بیک جنہوں نے کیا، جو باؤنس بیک کیا، اور بالکل، ہم اس طرح کے اقدامات نہیں اٹھا سکے جیسے عوام کی خواہش تھی، اور عوام کی خواہش پر جیسے نواز شریف صاحب اس کو لے کے چلنے کی کوشش کر رہے تھے. اندرون ملک سے بھی بہت ساری مخالفت ہوئی، اور آپ نے دیکھا بالکل، کہ جو بھی ساری صورتحال ہوئی، عدالتوں کے اندر کیسز ثابت اس طرح سے نہیں ہو پائے جس طرح سے ثابت ان کو ہونا چاہیے تھا، جس طرح سے افواہیں اڑائی گئی تھی. اب اگر دوبارہ ان کا راستہ ہموار کیا جا رہا ہے، یہ ایک عجیب سی بات میں کافی وقت سے سن رہا ہوں. لیکن جو قانون پاس کیا گیا نا نااہلی کا، وہ 5 سال جی، والا، وہ ایک ریشنلائزڈ ہے. آپ کسی شخص کو کسی لیم لاجک کے اوپر آپ اس کو ساری زندگی کے لیے نااہل نہیں کر سکتے. تو یہ ایک اچھی بات میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے پارلیمنٹ کے اندر ایک ایسا قانون نافذ کر دیا ہے تاکہ کچھ وقت تک وہ سیاست سے دور رہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس طرح کی سزا سے جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ کچھ سیکھ بھی لیں گے. لیکن وہ آنے کے بعد جیسے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی آپ نے بات کی، انہوں نے کافی اپنا ایز اے فورن منسٹر کام کیا. لیکن ابھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ فورن پالیسی پہ صرف سٹیٹمنٹس کے اوپر نہیں چلتی ہے. سٹیٹمنٹس ان کی بہت اچھی آئی ہیں، بہت انہیں ڈپلومیسی کی ہے، اور بہت حد تک کامیاب بھی رہے ہیں. لیکن جو ایک اسٹیٹ ڈپلومیسی ہوتی ہے نا، وہ ایک بہت میچور لیول کے کام ہوتے ہیں. ابھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی آپ اس وقت کے آرمی چیف جاتے تھے، اور بالکل، ابھی بھی آپ کے بہت ساری جو گتھیاں ہیں وہ آپ کے آرمی چیف نے جا کے سلجھائی ہیں بالکل، اور بالکل، راستہ ہموار کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاستدان اور جو ہمارے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں
या एस्टैब्लिशमेंट जिसको हम कहते हैं, इनका आपस में एक दूसरे के साथ अफ़ाम व तफ़हीम के साथ चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम किसी एक को इस जो गवर्नेंस सिस्टम है हमारा, जो स्टेट गवर्नेंस सिस्टम है, उसमें से निकाल नहीं सकते। हमें ये देखना पड़ेगा कि किसकी ज्यूरिसडिक्शन कहाँ पर खत्म हो जाती है। अभी आप ये देखें कि पिछले कुछ सालों के अंदर अदलिया किस कदर बदनाम हो चुकी है। जी, मैं शर्म आती है जब इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर आपके जुडिशरी के बारे में लोग हाँ, बिल्कुल, हमसे सवाल करते हैं बिल्कुल, और कहते हैं, और लोग हंसते हैं हमारे ऊपर कि यार तुम्हारे तो जज जो हैं, दे आर सिटिंग ऑन देयर शॉप्स या एंड दे आर सेलिंग देयर डिसीजंस। एग्ज़ैक्टली, जब इस तरह के कमेंट्स हमें सुनने को मिलते हैं ना, अब तो आपने देखा होगा काफी वक्त से मैंने इन चुभते हुए सवालात और तस्दीक वाले सवालात का सामना करने की बजाय ना, मैंने ये यानी आई ऑप्टेड टू यू नो एग्जिट फ्रॉम इंटरनेशनल मीडिया कि यार ओह! ऐसे बुरे बुरे सवाल पूछते हैं और ऐसे बोल्ड सवाल पूछते हैं जिससे आप यकीन माने बंदे को पसीना आ लाजवाब हो जाता है, जाता है, लाजवाब हो लाजवाब हो जाता है। जाता है। पिछली हुँ, दफा ऐसी स्पीचलेस सूरत हाल थी, तो मैंने इसको वो किया। उसके बाद मैंने पिछले कई महीनों से जो है मैं इंटरनेशनल मीडिया को अवॉइड कर रहा हूं, क्योंकि उनके जो सवालात वो जो भेजते हैं वो इतने क्रिटिकल होते हैं और आपकी जुडिशरी के बारे में और एस्टैब्लिशमेंट के बारे में इतने क्रिटिकल होते हैं कि, और अक्सर लोगों को तो शायद हमारे ह्यूमन राइट्स की जो सिचुएशन है, उनको ये शायद पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं पता कि हमारे यहाँ हुआ क्या है 9 मई में। या और हुँ, वो सारे का सारा उसको ह्यूमन राइट्स का एक एजेंडा बना के पेश करते हैं और कहते हैं कि आपकी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व है ह्यूमन राइट्स वायलेशन के अंदर। एग्ज़ैक्टली, तो बिल्कुल, अब डेमोक्रेटिक स्टेट को अगर इस हमारे हम जैसे जर्नलिस्टों को या एनालिस्ट तजियाकारों को अगर इस तरह के सवाल का सामना करना पड़ेगा और वो बड़े तस्दीक अमेज होंगे, तो फिर बड़ा मुश्किल काम है। तो ये हमें सारी सूरत हाल को देखते हुए हर स्टेट इंस्टीट्यूशन को, जुडिशरी को अपना मुहासबा खुद करना पड़ेगा। अगर सबको जुडिशरी अपना मुहासबा नहीं करेगी, इसी तरह एस्टैब्लिशमेंट को अपना मुहासबा बिल्कुल, करना पड़ेगा, बिल्कुल, सियासतदानों को अपनी रवश को ठीक करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। और फिर सबसे बड़ी जो हिडन कुवत है इस पूरे सिस्टम के अंदर, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट हो, जी, चाहे वो सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, जी, इनको तो सबसे ज्यादा होश के नाखून लेने पड़ेंगे, क्योंकि असल किया धरा तो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल, और जिसको हम एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं या सिविल ब्यूरोक्रेसी, एग्ज़ैक्ट असल किया धरा तो इनका होता है। अगर ये किसी सियासतदान के सामने खड़े हो जाएं और कहें कि सर ये चीज नहीं हो सकती, तो मेरा ख्याल है कि वो चीज नहीं हो पाएगी। बिल्कुल ठीक। तो अब सियासतदानों को भी मालूम है कि हमें अपनी ब्यूरोक्रेसी को अपने साथ लेके चलना पड़ता है। हुँ, जैसे ही कोई नया हुक्मरान आता है, कोई नया वजीर आता है, तो वो साथ ही रीशफल करता है ब्यूरोक्रेसी को, अपने मनपसंद लोगों को लेकर आता है। तो अब ये जो एक वेस्टेड इंटरेस्ट जो है हर शोबे से बाहर निकल जाना चाहिए, तभी हमारी जो मुआशी और समाजी सूरत हाल है वो बेहतर हो सकती है। बिल्कुल सिर्फ ठीक। एक समाजी और मुआशी तौर पर मजबूत मुल्क ही एक बेहतर नुमाइंदगी कर पाएगा दुनिया के अंदर। तो इसका बिल्कुल, हमें थोड़ा इदराक होना चाहिए। बिल्कुल सही है सर और यकीनन इसके लिए ये इदराक करने के लिए, ये मैयर्स उठाने के लिए हम सबको वो हमारा मीडिया हो, हमारी ब्यूरोक्रेसी हो, हमारी गवर्नमेंट हो, जुडिशरी हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, सबको ये मानना पड़ेगा कि हमने बहुत बड़ी-बड़ी गलतियाँ की है। अब उसको सुधारने का वक़्त है। इसके साथ हम शायद मज़ीद आगे अब नहीं चल फ़ख्र सकते। एक, जी, अब आपने अच्छा किया कि इसमें एक मीडिया को डाल दिया। जी। मीडिया जिस तरह से, मैं आसान अगर लफ्ज़, जी, हल्का लफ्ज़ जी, बोलूँ, जी। जो कुक्कड़ लड़ाने का काम कर रहा है ना, आप इसको एक्सट्रीम पे ले जाएँ। जो ठीक आपके ज़हन में इस वक़्त लफ्ज़ आ रहा जी, है ना, बिल्कुल। एग्ज़ैक्टली, और वो सुनने वालों के ज़हन में भी वही लफ्ज़ आ रहा होगा। ये कुक्कड़ नहीं लड़ाते हैं, ये उससे ऊपर की कुछ चीज़ें लड़ा रहे हैं, एग्ज़ैक्टली, तो बिल्कुल। इनको थोड़ा ज़रा एहतियात करनी पड़ेगी। इनको अपने मीडिया को, यार इंटरनेशनल मीडिया देखते हैं कहाँ पर इस तरह के काम हो रहे हैं। हुँ, या कौन इस तरह बिल्कुल, की फ़िज़ूल तरह की बहसें करवा रहा है, और एग्ज़ैक्टली, हर टीवी चैनल के ऊपर यही हो रहा है। आप बिल्कुल उठाएँ ना जो इंटरनेशनल रेप्यूटेबल चैनल्स हैं, वो एग्ज़ैक्टली, सियासत यू का आर राइट। एक बड़ा पॉज़िटिव मुस्बत स्टोरीज़ के साथ वो आ रहे हैं। या एक बड़ी एक पॉज़िटिव डिबेट के साथ आते हैं, और बेशक, पाकिस्तान में कुक्कड़ लड़ाने का काम जारी है। तो कुछ बिल्कुल सही। थोड़ी शर्म हया
हमारे जो साथी हैं ना, हमारे जो सीनियर हैं, बिल्कुल, बिल्कुल सर। उनको थोड़ा-सा कर लेना चाहिए। बिल्कुल सर, आपका मैसेज भी पहुँच गया और यही है कि इन सबको एक जिसे कहते हैं कि अपनी गलती माननी पड़ेगी और इसके साथ इसको ठीक करना पड़ेगा। मानने से सिर्फ काम नहीं होगा, ठीक भी हुँ, साथ करना पड़ेगा तब आगे जाके हम बढ़ेंगे और दुनिया में शायद फिर सर उठाकर जी भी सकेंगे और ये जो दर-दर की खाक हम जाके चाहते हैं, ये भी शायद कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। सर आपका बहुत शुक्रिया, मुनीर साहब आपने शो जॉइन किया, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक